فتنہ اپنے ماں باپ کا ایک لوتا لڑکا تھا۔ وہ بہت مالدار تھے پر کوئی اولاد نہ ہوتی تھی۔ بہت دنوں بعد بڑی آرزوؤں سے فتنے میاں پیدا ہوئے۔ اس خوشی میں فتنے کے باپ نے دوستوں کی دعوت کی اور لاکھوں روپیہ پانی کی طرح بہایا۔ فتنے میاں کی پرورش بڑے لاڈ پیار سے ہونے لگی۔ جب ان کی عمر 4 سال کی ہوئی تو یہ اپنی توتلی آواز سے باتیں کر کے ماں باپ کا دل خوش کرتے۔ ماں اسے پیار سے فتنہ کہا کرتی تھی۔ شوق شریر بےحد تھا۔ باورچی خانے میں گھس کر کھانے پینے کی چیزیں خراب کر دیتا، پکتی ہوئی ہانڈی میں نمک کا ڈبہ الٹ دیتا، باورچن کا نام بدنام ہوتا۔ دوسروں کو برا بھلا کہلوانے میں اسے بڑا مزہ آتا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ نوکرانیاں پڑی سو رہی تھیں۔ فتنہ چپکے سے اٹھا اور سوچنے لگا کہ آج کون سا نیا کھیل کھیلا جائے۔ آخر نوکرانیوں کی چوٹیوں میں ایک موٹا دھاگا باندھ کر اور اسے تیل میں تر کر کے دیا سلائی دکھا دی اور آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں ان کے سر میں آگ لگنی شروع ہوئی اور ایسا گل مچا کہ بس توبہ۔ تکلیف کے مارے ایک ایک سے چمٹی جاتی تھی اور شور مچاتی تھی۔ سارا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ شور و گل سن کر ماں بڑبڑاتی اٹھی اور ان کی آگ بجھانے کو جانے لگی، مگر فتنہ اپنی ماں سے اس بری طرح چمٹ گیا تھا کہ اٹھنے نہ دیتا تھا۔ ماں نے بہت بار چاہا کہ آگ بجھا دے، لیکن وہ ڈرپوک عورت اپنے جلنے کے خوف سے لحاف میں جا دبکی۔ آخر وہ تمام نوکرانیاں جل کر مر گئیں۔ جب فتنہ کا باپ گھر میں آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بیوی سے کہنے لگا، ہائے یہ کیا ہوا؟ نوکرانیاں کیسے جل کر مر گئیں؟ فتنے کی ماں نے کہا، میں تو سو رہی تھی، جب یہ جلنے لگیں اور چیخی چلائیں تب میری آنکھ کھلی۔ میں نے بہت بار چاہا کہ ان کی مدد کروں، پر فتنہ مجھے اس بری طرح سے چمٹ گیا تھا کہ اس نے مجھے کچھ کرنے ہی نہ دیا۔ فتنے کے باپ نے کہا، تم نے پڑوسیوں کو کیوں نہیں بلایا؟ وہ کچھ تمہاری ضرور مدد کرتے۔ فتنے کی ماں نے کہا، اتنا وقت کہاں تھا جو میں لوگوں کو گھر گھر بلاتی پھرتی؟ انہیں خود آنا چاہیے تھا، بھلا میں اپنے بچے کو چھوڑ کر کس طرح جا سکتی تھی؟ فتنے کے باپ نے کہا، بے وقوف عورت، یہ تو نے گھر میں بیٹھ کر کیا کر دیا؟ دیکھ حاکم تجھے اور مجھے کیسی سزا دیتا ہے۔ فتنے کی ماں نے کہا، حاکم تو تمہارا لنگوٹیا یار ہے، کچھ پوچھے تو کہہ دینا کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے، ان کی موت اسی طرح لکھی ہوئی تھی۔ فتنے کے باپ نے کہا، اب تمہارے واز کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر بیچارے نے نوکرانیوں کو دفنانے کا ارادہ کیا۔ جنازے تیار تھے کہ اتنے میں حاکم کا ایک اردلی آیا اور ایک رکاب فتنے کے باپ کو دے دیا۔ اس نے پڑھا اور بیوی سے کہنے لگا، دیکھو اب ہم پر کیا آفت گزرتی ہے، حاکم نے مجھے بلوایا ہے، نہ جانے وہ کیا سلوک کرے گا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پرچہ اپنی بیوی کو دے دیا۔ فتنے کی ماں نے بے پرواہی سے لے کر اپنے تکیے کے نیچے سرکا دیا۔ فتنے نے اسے رکھتے ہوئے دیکھ لیا اور روکا وہاں سے نکال کر اور پھاڑ کر اردلی کے ہاتھ میں دے دیا۔ اردلی جواب کا منتظر تھا ہی، روکا لے کر سیدھا حاکم کے دربار میں پہنچا۔ حاکم نے جب اپنے حکم نامے کی یہ حالت دیکھی تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، ایک ادنا سوداگر کی یہ ہمت! کوتوال کو حکم دیا کہ اس کا گھر لوٹ لو اور اسے بچوں سمیت باندھ لاؤ۔ کوتوال سپاہیوں کو لے کر اس طرف روانہ ہوا۔ سوداگر کا مال اسباب سرکاری خزانے میں داخل کیا، سارا گھر لوٹ لیا، دروازوں کے کواڑ تک اتار کر لے گئے۔ کوتوال نے سوداگر کو باندھ لیا۔ فتنہ اور اس کی ماں بھی ساتھ تھے اور تینوں لاشیں بھی۔ حاکم پہلے ہی سے غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ سوداگر کو دیکھتے ہی کہنے لگا، مردود، تجھے اپنی بے زبان نوکرانیوں کو مارتے ہوئے رحم نہیں آیا؟ بے درد بے غیرت، اپنے قصور پر ذرا شرمندہ نہ ہوا اور میرا روکا بھی پھاڑ کر بھیج دیا۔ فتنے کے باپ نے کہا، حضور میری تو سنیے۔ حاکم نے غصے سے کہا، جلدی بول کیا کہتا ہے؟ فتنے کا باپ ہاتھ جوڑ کر بولا، حضور جس روز یہ جلی ہیں اس دن میں گھر پر نہیں تھا، ایک دوست کے ہاں مہمان گیا ہوا تھا۔ جب صبح کو گھر آیا تو یہ خوفناک منظر دیکھا، میں گھبرا گیا۔ بیوی سے پوچھا پر اس نے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ میں نے ازرہ ہمدردی اسلامی فرض ادا کرنے کی کوشش کی۔ نوکرانیوں کے دفنانے کا سامان کر رہا تھا کہ آپ کے چوبدار نے مجھے حکم نامہ دیا۔ میں اس کو پڑھ کر اور بھی پریشان ہو گیا۔ میں نے وہ روکا اپنی بیوی کو رکھنے کے لیے دے دیا اور دربار میں پیش ہونے کی تیاری کرنے لگا، مگر میرا شریر بچہ روکا پھاڑ کر آپ کے چوبدار کو دے آیا۔ یہ سب اس فتنے کی کارستانی ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ حاکم کے دل پر ان باتوں کا ذرا اثر نہ ہوا اور اس نے فتنے کی ماں سے ڈانٹ کر پوچھا، ظالم عورت، نوکرانیوں نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو نے انہیں اس عذاب سے مارا اور سب کو ایک ساتھ جلا دیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا؟ فتنے کی ماں نے کہا، حضور خود سوچئے بھلا، انہوں نے میرا کیا بگاڑا تھا جو میں انہیں مارتی؟ وہ تو میری بڑی وفادار نوکرانیاں تھیں۔ حاکم نے کہا، پھر تو نے آگ بجھانے میں ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ فتنے کی ماں نے کہا، جس وقت ان کے سر میں آگ لگی تھی تو میرے ہوش جاتے رہے۔ حاکم بولا، تو پھر باہر سے پڑوسیوں کو مدد کے لیے کیوں نہیں بلایا؟ تو نے جان بوجھ کر غفلت کی اور انہیں جلنے دیا۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ فتنہ ایک دم بول اٹھا، حضور میں نے انہیں جلایا ہے، میں نے ان کے سروں میں ایک ڈوری باندھ کر تیل میں بھگو کر آگ لگائی تھی جس سے وہ جل کر مر گئی۔
हाकिम ने कहा, ये सब तेरी माँ के करतूत हैं, इसी ने तुझे ये बातें सिखाई होंगी और इस तरकीब से इन्हें मारा होगा। ये कहकर हाकिम ने फैसला किया और ये सजा दी कि फितने के बाप का काला मुंह करके शहर से निकाल दिया और उसकी माँ को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। फितने का बाप फितने को गोद में लेकर रोता हुआ शहर से निकलकर चल दिया। बेचारा गांव गांव मांगता खाता चला जाता था। बहुत दिनों बाद एक शहर में पहुंचा। वहां उसे एक सौदागर ने अपने यहाँ नौकर रख लिया। ये सौदागर फितने से बहुत मोहब्बत करने लगा, खाना भी अपने साथ खिलाता था। उस सौदागर की कोई औलाद ना थी, उसने फितने को गोद ले लिया। सौदागर बहुत नेक चलन आदमी था, नेक होने की वजह से सारे शहर में मशहूर था। फितने के बाप को उसके पास रहते सहते मुद्दत हो गई। फितना जवान होने के करीब था, अब वो पूरे 13 बरस का हो गया था। उम्र के साथ साथ उसकी शोखियां चालाकियां भी बढ़ गई थी। एक दिन का जिक्र है कि फितना अपनी दुकान पर बैठा कागज की नाव बना रहा था। उस वक्त दुकान में ना उसका बाप था और ना ही सौदागर के। इतने में एक औरत आई और उसने फितने से नरम आवाज में पूछा, मियाँ लड़के सौदागर कहाँ हैं? फितने ने कहा, वो अभी किसी काम से बाहर गए हैं, तशरीफ रखिए, वो अभी आते ही होंगे। औरत बैठ गई और उसने फितने को सलीके मंद समझकर वक्त गुजारने के लिए बातचीत शुरू कर दी। कहने लगी, मियाँ लड़के तुम्हारा नाम क्या है? फितना दोनों होठ फुलाकर और मुंह पुलिया सा बनाकर बोला, आप भी तो अपना नाम बताइए। औरत बोली, पहले तुम बताओ। फितने मियाँ ने कहा, असली नाम तो मालूम नहीं, अम्मा मुझे प्यार से फितना कहा करती थी। औरत ने फिर पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? फितना बोला, ये तो टेढ़ा सवाल है। क्यों? औरत ने पूछा। फितना बोला, इसलिए कि आपको बुर्का उठाकर मुंह दिखाना पड़ेगा। औरत ने हैरान होकर कहा, ये क्या बात कही? दूसरे की सूरत भी देखकर उम्र बताई जा सकती है, ये नया तरीका तुमने ही निकाला है। ये कहते हुए उसने अपना बुर्का ऊपर उठा लिया। फितने मियाँ उसे देखकर उछलकर बोले, आपकी उम्र से पूरे 4 बरस छोटा हूँ। औरत ने कहा, मैं तो 17 साल की हूँ, इस हिसाब से तुम्हारी उम्र 13 साल की हुई। फितने मियाँ मुस्कुराकर बोले, ठीक, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर बाद औरत बोली, अच्छा अब मैं जाती हूँ, तुम्हारे बाप अभी तक तो आए नहीं। फितने ने कहा, वो आते ही होंगे, आप बैठ जाइए, आप ही का घर है, आप तो मेरी बड़ी बहन की जगह है। औरत ने हंसकर पूछा, फितने ने कुछ पढ़ा लिखा भी है? फितने ने भर्राई हुई आवाज से कहा, हुजूर, ना कुछ पढ़ा न लिखा, ना दुकान ही पर कुछ काम करता हूँ, दिन भर बैठा हुआ सोचता ही रहता हूँ। औरत ने पूछा, तुम दिन भर क्या सोचते रहते हो? इतनी सी उम्र में सोचने भी लगे? फितने ने कहा, क्या बताऊं, जिस बात को मैं सोचता रहता हूँ, देखें आगे वो क्या रंग लाती है, खुदा बचाए बुरी घड़ी से। औरत ने हैरान होकर पूछा, ऐसी क्या बात है जो तुम इतने परेशान हो रहे हो? फितना बोला, भाई बात यह है कि सौदागर जिसने मुझे बेटा बनाया है वो सख्त बदचलन आवारा शख्स है, ठीक आदमी नहीं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने आपको बड़ी बहन कह दिया है। औरत ने कहा, चल दूर हो, बड़ा सच्चा बनता है, सौदागर तो बड़ा नेक आदमी है, तू बड़ा नमक हराम है, जिसका खाता है उसी को बदनाम करता है। फितना आहिस्ता से बोला, इस धोखे में ना रहना। औरत ने कहा, चल मुझे क्यों बेवकूफ बनाता है, मक्कार कहीं का, खुदा तुझसे बचाए, शक्ल तो बड़ी भोली है और गुण ऐसे हैं कि बस बचता ही रहे कोई। फितना बोला, कल आप अपनी आंखों से देख लेंगी। औरत ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा कल आऊंगी मैं। ये कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद फितने का बाप यानी सौदागर आ गया। फितने ने उसे देखते ही मचलना और रोना शुरू कर दिया। सौदागर ने फितने से पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रोता है, किसी ने मारा है क्या? फितने ने कहा, नहीं किसी ने नहीं मारा, मैं अभी सो रहा था, ख्वाब में अपनी माँ को देखा, वो मुझसे कह रही थी कि बेटा अभी तेरी शादी नहीं हुई, मुझे तेरी दुल्हन देखने की तमन्ना थी, वो होती तो मेरी फातह दिलाती। मैंने कहा, अम्मा जान फिर मैं क्या करूं? कहने लगी, तू ही एक दिन दुल्हनों के कपड़े पहनकर मेरी फातह दे, तब मेरी रूह खुश होगी। सौदागर ने सर पर हाथ फेरकर कहा, रोने की क्या बात है, कल तुम जनाने कपड़े पहन लेना और अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी कर देना। दूसरे दिन फितने मियाँ ने औरत के आने से पहले जनाने कपड़े पहने और सौदागर से मिठाई मंगवाकर फातह के बहाने कोने में बैठकर खूब खाई और खूब झूठी झांटी सौदागर को चखाई। सौदागर मिठाई खाकर मोहब्बत से बोला, क्यों बेटा, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी भी फातह इसी तरह दिया करोगे? फितने ने गले में बाहें डालकर कहा, क्यों नहीं अब्बा जान, मैं तुम्हारी फातह जरूर दिलाऊंगा। ये कहकर उसकी दाढ़ी में उंगलियां फेरने लगा। सौदागर को भी मोहब्बत आ गई और वो उसे प्यार करने लगा। इतने में वो औरत भी आ गई। देखती क्या है कि एक पतली दुबली नाजुक कोई 13 साल की छोकरी सौदागर की गोद में बैठी है। शाम हो चुकी थी, कोई चीज साफ नजर नहीं आती थी। औरत ये नजारा देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई। बेपूछे गुछे सौदागर के गले पर 2 चांटे रसीद किए और कहने लगी, मुर्दार, तू हरगिज इस काबिल नहीं कि शरीफ जादियां तेरी दुकान पर सौदा लेने आए। आज ही तुझे शहर से निकलवा दूंगी। तू जानता नहीं कि मैं काजी की लड़की हूँ।
सौदागर आंखें फाड़ कर बोला, नाराज क्यों होती हो? मेरा कसूर क्या है जिसकी सजा मुझे मिल रही है? औरत ने कहा, बेहया कहीं का, ये लड़की कौन है? सौदागर ने कहा, हुजूर ये मेरा बेटा है। औरत ने पूछा, कौन, फितना? सौदागर ने कहा, जी हुजूर। औरत बोली, अरे इसे क्या हो गया जो जनाना कपड़े पहनकर तेरी गोद में चढ़ बैठा? सौदागर ने सारा किस्सा बयान किया। औरत ने शर्मिंदा होते हुए कहा, फितने ने मुझे बहुत धोखा दिया और जो फितने से बातें हुई थी वो सब सौदागर को सुना दी। जरा देर तो फितने मियाँ चुप रहे और फिर तड़ तड़ बोलना शुरू कर दिया। सौदागर की ठोड़ी में हाथ डालकर कहना शुरू किया, अब्बा जान ये बड़ी चालाक मालूम होती है। इन्होंने आकर पहले आपका मिजाज पूछा। मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है। फिर पूछने लगी कि तू अपनी शादी क्यों नहीं कराता? मैंने कहा, मैं तो अभी पूरे 13 बरस का भी नहीं हूँ। इस पर कहने लगी, फिर अपने बाप की शादी करा दे। मैंने कहा, उनकी उम्र अब शादी के काबिल कहाँ, वो तो बूढ़े हो गए हैं, सफेद दाढ़ी है। कहने लगी, अपने बाप से कहना तो सही। मैंने कहा, उन बेचारों से कौन शादी करेगा? कहने लगी कि मैं कैसी हूँ? मैंने कहा, आपका और उनका क्या जोड़? ये कहने लगी कि अगर वो मुझसे शादी को इनकार करेगा तो मैं उसे शहर से निकलवा दूंगी और उसकी तमाम जायदाद माल असबाब लुटवा दूंगी। मैंने कहा, वो आपसे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, चाहे आप उन्हें सूली पर ही लटका दें। ये सुनकर औरत की एड़ी से चोटी तक आग लग गई और उसने फितने का गिरेबान पकड़कर कहा, जाता कहाँ है झूठे, तूने जो तूफान मुझ पर उठाया है नतीजा तुझे अभी दिखा दूंगी। फितने को जूतियों से पीटकर औरत अपने घर की तरफ रवाना हुई। रास्ते भर दिल में कोसती हुई और अपनी इज्जत को धब्बा लगने के खौफ से खामोश चली जाती थी। पांव डालती कहीं थी और पड़ता कहीं था। आखिर गिरते पड़ते अपने घर पहुंची और बदनामी के ख्याल से किसी से जिक्र न किया। जब औरत चली गई तो सौदागर ने फितने से पूछा, सच बताओ क्या बात थी? अगर तूने औरत पर झूठ बोला होगा तो काजी हमारे घर की ईंट से ईंट बजा देगा। फितना यकीन दिलाने के लिए सौदागर की नाक पर उंगली रखता हुआ बोला, अच्छे बाबा, मैंने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही है। मेरी उससे कोई दुश्मनी थोड़ी थी, मैंने तो उसके मुंह पर साफ साफ बात कह दी। सौदागर ने कहा, वो तो बड़ी नेक और खुश मिजाज है, मेरी समझ में नहीं आता कि किस्सा क्या है। इतने में फितने का असली बाप आ गया। वो फितने को जनाने कपड़े पहने देखकर कहने लगा, इसको क्या हुआ जो लोंडी बना बैठा है? सौदागर ने फितने के ख्वाब का हाल सुनाया। फितने के बाप ने कहा, ये झूठा है, इसकी माँ हरगिज ऐसा नहीं कह सकती। वो इससे खुश ना थी क्योंकि इसकी शरारत ने ही उसे मरवा दिया था। सौदागर हक्का बक्का होकर फितने की तरफ देखने लगा। फितने के बाप ने सारी कहानी सौदागर को सुनाई। अब तो सौदागर की आंखें खुली, दिल में कहने लगा कि ये तमाम शरारत फितने की है, औरत बेकसूर है। ये लड़का बड़ा झूठा मक्कार दगाबाज मालूम होता है। अब मुझे ना जाने किन किन हालों को पहुंचाएगा। फितना सौदागर को फिक्रमंद देखकर अपने बाप को कहने लगा, ये आदमी हरगिज मेरा बाप नहीं, झूठ बकता है। असल में बात यह है कि हम बगदाद की तरफ जा रहे थे। जब हमारा काफिला बीच जंगल में पहुंचा तो डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया और सारा माल असबाब लूट लिया। माल असबाब तकसीम हुआ तो मैं और मेरी माँ इस डाकू के कब्जे में आए। इसने मेरी माँ को तो मार डाला और मुझे अपना बेटा बताकर अपने साथ लिए फिरता रहा। ये सुनकर सौदागर कुछ देर तक चुप रहा। आखिर उसने फितने से कहा, मगर तेरी सूरत तो इससे मिलती है। फितने ने उछल कर कहा, वाह खूब, क्या दुनिया में एक सूरत के दो आदमी नहीं होते? हजारों आदमी ऐसे मालूम होते हैं जैसे भाई भाई हों। मेरा बाप यहाँ कहाँ, वो तो जन्नत के मजे ले रहा होगा। ये तो है डाकू, इसी ने मेरे बाप को मारा है। फितने का बाप आंखों में आंसू भरकर कहने लगा, अफसोस है कि बेटा बाप का दुश्मन हो गया। सौदागर ने फितने के बाप से कहा, क्यों मियाँ, ये क्या कहता है? फितने का बाप गुस्से से बोला, ये लड़का झूठ बकता है, मैं ही इसका बाप हूँ। फितने ने कहा, मैं झूठा हूँ या कि तू? मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। ये कहकर सौदागर को यकीन दिलाने के लिए फिरकी की तरह नाचा और नाचकर एक चपत अपने बाप के गाल पर जड़ दिया और कहा, चला जा कमीने, दगाबाज, कज़्ज़ाब, बेईमान कहीं के। फितने का बाप चपत खाकर उसकी तरफ देखने लगा। सौदागर ने उसको परेशान देखकर कहा, देखता क्या है, अपनी खैरियत चाहता है तो मेरे सामने से दूर हो जा। फितने के बाप ने सौदागर की बहुत खुशामद की और कहने लगा, अब तो रात हो गई है, सुबह को चला जाऊंगा। सौदागर ने उसे रात काटने की इजाजत दे दी। फितने का बाप बहुत देर तक अपनी किस्मत पर खून के आंसू बहाता रहा। फितना उसके पलंग के पास बार बार आता और छोटी छोटी आंखें चमकाकर मुस्कुराकर सौदागर के पास बैठ जाता। रात ज्यादा हो गई थी। फितना और सौदागर तो सो गए। चुपके से फितने का बाप उठा और मोहब्बत भरी नजरें बेटे के चेहरे पर डाली और मुड़ मुड़कर देखता हुआ कोठे पर पहुंचा और वहां से कूदकर मर गया। सुबह को जब फितना और सौदागर सोकर उठे तो देखते क्या है कि फितने के बाप की लाश गली में पड़ी है और लोग इकट्ठे हैं। ये नजारा देखकर सौदागर बहुत परेशान हुआ।
فتنے نے لاش سے چمٹ کر ہائے ابا کہہ زور زور سے رونا شروع کر دیا اور اتنا چیخا کہ راہگیر اکٹھے ہو گئے اور طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ سوداگر نے گرفتاری کے خوف سے لوگوں کو باتوں میں ٹالنا چاہا، مگر فتنہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، ہائے ابا تمہیں سوداگر نے مار ڈالا۔ سوداگر کے ہوش اڑے جاتے تھے، دل میں کہہ رہا تھا اس کا رونا ہوا اور میری کمبختی آ گئی۔ بار بار کہتا تھا چپ رہ منحوس۔ انہی لوگوں میں سے کسی نے کوتوالی میں خبر کر دی۔ کوتوال جھٹ سپاہیوں کو لے کر سوداگر کے مکان پر آ دھمکا۔ فتنہ برابر روئے جاتا تھا۔ کوتوال کے آنے پر اس نے صاف صاف کہنا شروع کیا، سوداگر صاحب کسی کی جان لینا آسان نہیں، اب آپ کو پتہ چلے گا، غصہ کرنے کا مزہ آ جائے گا۔ سوداگر نے اسے خاموش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن فتنہ روتا اور چیختا ہی رہا۔ کوتوال فتنے سے پوچھنے لگا، اس نے تیرے باپ کو کیوں مارا؟ فتنے نے کہا، حضور اس سوداگر نے مجھے گود لے رکھا ہے، اس کے پاس رہتے سہتے مجھے 2 سال ہو گئے تھے۔ میرا باپ مجھے اپنے ساتھ وطن لے جانا چاہتا تھا، لیکن یہ مجھے روکتا تھا۔ اس پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور اس نے میرے باپ کو کوٹھے پر سے دھکیل دیا۔ کوتوال نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لڑکا سچ کہتا ہے، ضرور یہی بات ہے۔ سوداگر بولا، حضور یہ لڑکا جھوٹ بولتا ہے، میں نے اسے نہیں مارا، یہ خود گر پڑا ہوگا۔ کوتوال نے کہا، کیوں جھوٹی باتیں بناتا ہے؟ بھلا کوئی ایسی جگہ سے بھی گر سکتا ہے، شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ سوداگر نے کہا، جناب یہ لڑکا جھوٹا اور مکار ہے، ذرا اس کی کہانی سنو تو پتہ چلے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ کوتوال نے کہا، اپنی کہانی بادشاہ کو سنانا، ہمیں سننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سوداگر نے کہا، اچھا حضور آپ نہ سنیں، بادشاہی کو سنا دوں گا، وہاں تو انصاف ہوگا۔ کوتوال نے کہا، تیری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے تو قاتل ہے، لیکن کچھ سنانا چاہتا ہے تو سنا۔ سوداگر ابھی کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ فتنہ چیخ چیخ کر کہنے لگا، حضور یہ شخص 1000 جھوٹے الزام لگائے، لیکن مجھے آپ پر بھروسہ ہے کہ آپ اس کا ذرا یقین نہ کریں گے۔ کوتوال نے اسے تسلی دی، گھبرا نہیں، تیرا بال بھی کا نہ ہوگا، میں جانتا ہوں کہ یہ سوداگر بڑا مکار اور جھوٹا ہے، لیکن دیکھیں کیا بکتا ہے۔ فتنے نے رو کر کہا، حضور مجھے اس سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ کوتوال نے پیار کر کے کہا، ڈرو مت، تمہارے رونے سے میرا کلیجہ شک ہوتا ہے اور مجھے تم پر رحم آتا ہے۔ یہ کہہ کر کوتوال نے سوداگر سے کڑک کر کہا، جلدی کہہ، چپ کیوں کھڑا ہے؟ دل میں سوچتا ہوگا کہ کوئی من گھڑت قصہ سنا کر اپنی جان بچا لوں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ سوداگر نے فتنے میاں کے کارنامے بیان کر دیے اور گواہ قاضی جی کی صاحبزادی کو ٹھہرایا۔ سوداگر کا یہ بیان سن کر کوتوال بہت پریشان ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایک عزت دار بڑے آدمی کی لڑکی کو یہاں کیسے بلا سکتا ہوں۔ یکا یک فتنہ کوتوال سے ہاتھ جوڑ کر بولا، حضور میں بھی کچھ عرض کروں؟ کوتوال نے کہا، کہو۔ اس پر فتنے میاں نے رک رک کر کہنا شروع کیا، کیا عرض کروں، شرم آتی ہے، لیکن کہے بغیر کام بھی نہ چلے گا۔ بات یہ ہے، قاضی جی کی صاحبزادی جو ہیں وہ اصل میں میری والدہ ہیں۔ کوتوال آنکھیں پھاڑ کر بولا، وہ کیسے؟ ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ فتنے نے کہا، شادی ہوئی یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن ایک دن وہ ہنستی ہوئی آئی تھی، مجھ سے سوداگر کو دریافت کرنے لگی۔ میں نے کہا، آپ کیوں پوچھتی ہیں؟ ہنس کر کہنے لگی، تو پوچھنے والا کون ہے؟ میں نے کہا، میں ان کا بیٹا ہوں۔ اس پر وہ کہنے لگی، پھر اولاد سے کیا پردہ؟ میرا ارادہ سوداگر سے شادی کرنے کا ہے۔ میں نے کہا، وہ تو کبھی بھی شادی نہ کریں گے۔ اس پر انہوں نے ناک منہ چڑھا کر میرے چانٹا رسید کیا اور دکان سے چلی گئیں۔ میں رو رہا تھا کہ اتنے میں میرے ابا جان یعنی سوداگر صاحب تشریف لے آئے اور پوچھنے لگے، کیوں روتا ہے؟ میں نے سارا حال سنا دیا۔ سن کر پہلے تو داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور پھر مونچھیں مروڑی اور مسکرا کر کہنے لگے، تم فکر نہ کرو، وہ اگر اب کے آئے تو تم زنانی پوشاک پہن لینا، میں تھوڑی سی مٹھائی لا دوں گا، ایک کونے میں بیٹھ کر کھاتے رہنا۔ میں اسے تیری بابت بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لڑکی بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اگر وہ تجھ سے پوچھے تو کہہ دینا کہ میں شہر کوتوال کی لڑکی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے زبردستی زنانہ کپڑے پہنا کر ایک طرف کونے میں بٹھا دیا، سامنے تھوڑی سی مٹھائی رکھ دی اور میں مٹھائی چپ کے کھاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت آ گئی اور دیر تک سوداگر سے ہنستی مذاق کرتی رہی، پھر میری طرف متوجہ ہوئی تو میں نے اپنا نام زمرد بتا دیا۔ اس پر انہوں نے مجھے اور مٹھائی کھانے کو دی اور جب تک قاضی کی لڑکی رخصت نہ ہوئی یہ سوداگر صاحب میری تعریف کرتے رہے، بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہتے تھے، سبحان اللہ کیا پیارا نام ہے، زمرد۔ آپ دلاور خان صاحب کوتوال شہر کی صاحبزادی ہیں۔ جب قاضی کی لڑکی چلی گئی تو مجھ سے زنانی پوشاک اتروا دی۔ یہ سوداگر صاحب جو اب کھڑے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں مجھ سے فرمانے لگے، شادی کرنے کا ڈھنگ سیکھ لو، میرے بعد تم بھی میرا نام اسی طرح روشن کرنا۔ اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ اتنے میں میرا اصلی باپ آ گیا اور وہ میرے زنانے کپڑوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ زنانے کپڑے پہننے کیوں بیٹھا ہے؟ سوداگر نے میری مری ہوئی ماں پر الزام لگایا
और ख्वाब का बहाना कर दिया, लेकिन मैंने सारा भेद अपने बाप को बता दिया। जनाब आली, मेरा बाप बड़ा नेक शरीफ आदमी था। गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा, इस तरह तो तुम मेरे लड़के को बिगाड़ दोगे, मैं इसे अपने साथ लिए जाता हूँ। ये कहने लगे, मैंने इसे गोद लिया है, हरगिज न जाने दूंगा। इस पर तू मैं होने लगी। ये हजरत उस वक्त तो खामोश रहे, लेकिन रात के वक्त मौका पाकर मेरे बाप को कोठे से धक्का दे दिया। ये कहकर फितने मियाँ ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। कोतवाल अपनी बेटी का नाम सुनकर दिल ही दिल में पेचो ताप खा रहा था। फितने का बयान खत्म होते ही उसने सौदागर को बांध लिया और घसीटता हुआ कोतवाली ले गया। वहाँ खूब पीटा और हवालात में बंद कर दिया। फितने मियाँ अपनी कामयाबी पर बहुत खुश थे। सौदागर उसको बशाश देखकर बार बार गुस्से से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता था, पर मजबूर था, कुछ कर नहीं सकता था। कोतवाल ने गुस्से में सौदागर के खिलाफ बहुत सख्त रिमार्क दिया और फौरन मुकदमा काजी साहब की अदालत में भेज दिया। काजी साहब ने जब फितने के बयान सुने तो वो मारे गुस्से के थर थर कांपने लगे। मसनद पर बैठना दूभर हो गया। मुकदमा तो शहर के हाकिम के पास चलता किया, साथ ही अपनी बेइज्जती की दाद चाही और सीधे जनान खाने में पहुंचे। हाकिम बहुत समझदार था, लेकिन वो भी जल्दी किसी सही नतीजे पर न पहुंच सका। उसने फिर दोबारा फितने और सौदागर के बयान सुने। काजी की लड़की भी कुछ अजीबो गरीब थी। सारा मुकदमा गोरख धंधा बना हुआ था। हाकिम सख्त हैरत में था कि ये मामला क्या है। आखिर 2 दिन के लिए मुकदमा मुलतवी कर दिया। तीसरे दिन फिर हाकिम ने सबको बुलाया और नए सिरे से बयान सुने। दरबार आम था। उस मुकदमे की शोहरत सुनकर दूर दूर से लोग आए थे। दरबारियों और इज्जतदार लोगों ने हाकिम से अर्ज किया, सौदागर नेक, शरीफ और साफ दिल आदमी है, वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। हाकिम ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। बहुत देर गौर करने के बाद हाकिम ने हुक्म दिया, क्योंकि मुकदमे में कोई गवाह नहीं है, इसलिए सच्चाई के इम्तिहान के लिए सौदागर और फितने को आग में से गुजारा जाए। बहुत सी लकड़ियां जमा करके आग रोशन की गई और फितने से कहा कि अपनी सच्चाई का इम्तिहान दे। आग के भड़कते हुए शोले देखकर फितने को अपनी नौकरानियों का जलना याद आ गया। चालाक तो था ही, समझ गया कि कुदरत मुझसे उन बेगुनाह नौकरानियों का बदला लेना चाहती है। मुंह बनाकर कहने लगा, हुजूर, मुझे मिर्गी की बीमारी है, आग और पानी को देखकर दौरा पड़ जाता है। ये कहकर फितना जमीन पर गिरा और बेहोश होकर तख्ते की तरह अकड़ गया। हाकिम उसकी चालाकी पर खूब हंसा। फौरन शाही हकीम को बुलाया गया। उसने देखते ही कह दिया कि ये तो मक्र किए पड़ा है। फितने के सुइयां चुभोई गईं तो सीसी करके उठकर भागा। सिपाही घसीटते हुए पकड़ लाए। हाकिम गुस्से से आग बबूला हो गया और फितने से पूछा, सच बता, मामला क्या है? मजबूर होकर फितने को असली हाल कहना पड़ा। अब फितने मियाँ की शामत आई। झूठ बोलने के इल्जाम में सड़ासड़ कोड़े पड़ने लगे। पिटते पिटते बेहोश हो गया। हाकिम ने उसे अधमरा जानकर जंगल में डलवा दिया और सौदागर को बरी कर दिया। फितना कई घंटे तक जंगल में बेहोश पड़ा रहा। आखिर जब औसान ठिकाने हुए तो सरक कर एक दरख्त के साये में हो गया। दिन भर वहीं पड़ा रहता। चंद रोज में चलने की ताकत आ गई। दिन को किसी पेड़ से फल तोड़ लाता और रात को दरख्त के साये में सो जाता। एक दिन ये जंगल में पड़ा हुआ था। इत्तेफाक से एक राहगीर उधर आ निकला। उसने जो उसे इस हालत में देखा तो पूछने लगा, मियाँ, जंगल में अकेले क्यों पड़े रहते हो? फितने ने जवाब दिया, सब किस्मत के खेल हैं। मुसाफिर ने पूछा, आखिर हुआ क्या? फितना बोला, हम सफर कर रहे थे, डाकुओं ने हमारे काफिले को लूट लिया, मेरे माँ बाप को मार डाला और तमाम माल असबाब छीन लिया और मेरी ये हालत बना दी। मुसाफिर कहने लगा, अगर तुम मुनासिब समझो तो मेरे साथ चले चलो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ये सुनकर फितने मियाँ की तो बाछें खिल गई। झट साथ हो लिए। यह मुसाफिर एक अमीर आदमी था और जवाहरात की तिजारत करता था। जौहरी ने अपने घर जाकर फितने का इलाज किया और बड़ी खिदमत की। जब फितना तंदुरुस्त हो गया तो जौहरी और उसकी बीवी को बहुत खुशी हुई। फितने ने भी उनका शुक्रिया अदा किया और फर्मा बरदार बेटे की तरह उनके पास रहने लगा। वहाँ रहकर फितने ने फर्मा बरदारी और खिदमत से कुछ ही दिन में जौहरी के दिल पर अपनी वफादारी का सिक्का बिठा लिया। जौहरी की बीवी भी उससे खुश थी, अपने बेटे की तरह चाहती थी। फितना 1 साल तक इसी तरह रहता रहा। आखिर उसने अपनी आदत के मुवाफिक मक्कारी का जाल बिछाना शुरू किया। एक दिन जौहरी की बीवी से बोला, अम्मा जान, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। जौहरी की बीवी ने कहा, क्यों बेटा, खाना क्यों नहीं खाओगे? फितना बोला, छोटी अम्मा के यहाँ दावत है। जौहरी की बीवी ने हैरान होकर कहा, कौन छोटी अम्मा? क्या शहर में तेरी कोई और भी अम्मा रहती हैं? फितना आंखें चमकाकर बोला, आपको नहीं मालूम? बगल में लड़का शहर में ढिंडोरा। जब अब्बा जान मुझे अपने साथ लाए थे तो हम पहले शहर में आकर 2 दिन उन्हीं के यहाँ ठहरे थे। अब्बा जान ने उन्हें बहुत से रुपये और तोहफे दिए। जब मैंने पूछा कि ये कौन है तो कहने लगे कि ये तेरी छोटी अम्मा है। ये सुनकर जौहरी की बीवी बहुत परेशान हुई और पूछने लगी, क्या तेरे अब्बा ने कोई और निकाह कर रखा है? फितने मियाँ कह कहा लगाकर बोले,
अब आप मेरा मतलब समझे, मैं यही तो कहता था, और क्या कहूँ। बुरा न मानिएगा, वो तो आपको तलाक देने वाले हैं। ये सुनते ही जौहरी की बीवी की आंखों में आंसू भर आए और रंगत जर्द पड़ गई। फितने मियाँ गहरा असर देखकर बोले, खुदा के लिए अब्बा जान से ना जिक्र कीजिएगा, वरना वो मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। जौहरी की बीवी ने कहा, मैं तेरा नाम ना लूंगी। फितना मुस्कुराकर बोला, वो तो आपको अब्बा जान के बुरे बर्ताव से ही मालूम हो गया होगा, आप तो खुद समझदार हैं। जौहरी की बीवी ने कहा, भाई मैं सीधी सादी औरत, क्या जानूं, कभी इस पर गौर ही नहीं किया कि वो मुझसे कैसा सलूक करते हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या, गाता हुआ फितना वहाँ से चल दिया। जौहरी की बीवी उसे हैरत से देखती रह गई। मकान में आफत ढाकर फितना दुकान पर पहुंचा और एक कोने में बैठकर चुपके से रोने लगा। जौहरी ने सर पर हाथ फेरकर कहा, क्यों बेटा, क्या बात है? फितने ने कुछ जवाब ना दिया। जौहरी बोला, शायद माँ बाप याद आ रहे हैं, सब्र करो, रोने से क्या फायदा। फितने मियाँ आंसू पोंछते हुए बोले, नहीं अब्बा जान, मैं अपने किस्मत पर रो रहा हूँ। सगे माँ बाप तो मुसीबत की भेंट चढ़ चुके हैं, उन पर अफसोस करने से क्या हासिल। आपको बाप बनाया था तो आप पर भी मुसीबत आने वाली है। जौहरी ने आंखें फाड़कर कहा, मुझ पर मुसीबत, वो कैसी, खैर तो है। फितने मियाँ महीन सी आवाज में बोले, आज मामू जान और नाना आए थे, अम्मा ने संदूक में से निकालकर अशरफियों की एक थैली दे दी, वो अशरफियाँ लेकर चल दिए। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया, मगर आपके डर से कुछ कह न सका। जौहरी को बहुत गुस्सा आया और वो सोचने लगा कि मैं तो खून पसीना एक करके कमाऊं और बीवी घर में बैठकर लुटाए, ये कमबख्त कहाँ से भुतनी बनकर चिमट गई। खून का सा घूंट पीकर उस वक्त तो चुप हो गया, पर जब शाम को घर आया तो गुस्से से त्योरी चढ़ी हुई थी। जौहरी की बीवी समझ गई कि आज ये जरूर मुझे तलाक देने आया है। मुंह बनाकर कहने लगी, ब्याहता बीवी हूँ, सहरा बांध कर लाए थे, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद ना थी कि यूं मुझे घूर घूर के देखोगे। अगर मेरी सूरत से नफरत हो गई है तो साफ कह दो, मैं अपने मायके चली जाऊंगी, इसमें शर्म की क्या बात है। जौहरी ने कहा, शर्म तुझे आनी चाहिए, नमक हराम, मुझे उल्टी तोहमत लगाती है, घर में बैठकर हराम के लुकमे खाती है, मेरी दौलत लुटाती है, पहले वहाँ जमा जत्था पहुँचा दिया और अब खुद मायके जाना चाहती है। ये सुनते ही जौहरी की बीवी गुस्से से आग बबूला हो गई और चीखकर बोली, अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखो, कमाई खुद लुटाते हो और ऊपर से बातें बनाते हो। जौहरी ने उछलकर बीवी की चुटिया पकड़ ली और उसे जूतियों से तड़ातड़ मारना शुरू कर दिया। बीवी ने शोर से आसमान सर पर उठा लिया। जब फितने मियाँ ने यह नजारा देखा तो वो झट जौहरी की ससुराल पहुंचे और वहां से उसके तमाम रिश्तेदारों को बुला लाए। साले ससुरे पहुंचे तो लड़ाई पूरे शबाब पर थी। जौहरी अपनी बीवी को अंगनाई में घसीटे घसीटे फिरता था, बेचारी के कपड़े फटे हुए थे। मायके वालों ने ये हालत देखी तो उन्हें बहुत ताव आया। अपनी बेटी की हिमायत में जौहरी पर पिल पड़े, मारते मारते दुम्बा बना दिया। फितने ने देखा कि अब जौहरी काफी पिट चुका है तो वो भागा हुआ जौहरी के दोस्तों और रिश्तेदारों में पहुंचा और वहां से उन सबको बुला लाया। उन्होंने आकर जौहरी को बचा लिया और उसकी ससुराल वालों से बाकायदा जंग शुरू कर दी। लाठी, जूता, थप्पड़, घूसा, गरज हर चीज से फायदा उठाया गया। अच्छी खासी फौजदारी हो गई। दोनों तरफ के आदमियों को काफी चोटें आईं। मोहल्ले वालों ने थानेदार को बुलाकर खड़ा कर दिया। वो उन तमाम को बांधकर हाकिम के पास ले गया। बाकायदा मुकदमा पेश हुआ। हाकिम ने सौदागर से पूछा, तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा? सौदागर ने सारा किस्सा कह सुनाया। जब जौहरी की बीवी से पूछा गया तो उसने भी फितने की जबानी जो कुछ सुना था हाकिम को सुना दिया। हाकिम ने जौहरी के दोस्तों और ससुराल वालों से पूछा, तुम कैसे आए? उन्होंने भी फितने का ही नाम लिया। गरज हर जगह हर बात में फितने की शरारत पकड़ी गई। हाकिम ने फितने को बुलाया और गौर से सूरत देखी तो ये वही लड़का था जो पहले सौदागर के मामले में कोड़ों की सजा पा चुका था। हाकिम ने उसे खतरनाक समझकर बुरी आदतें छुड़ाने के लिए उसको 12 बरस के लिए इस्लाही जेल खाने में भेज दिया। इस तरह फितने का पाप कटा और दुनिया को उससे निजात मिली। जौहरी और जौहरी की बीवी ने एक दूसरे से माफी मांगी। ससुराल वालों और जौहरी के दोस्तों में भी सुलह हो गई। प्यारे दोस्तों, फितने मियाँ का किस्सा तो यहाँ खत्म होता है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि दुनिया की हर छोटी या बड़ी बात को बगैर तहकीक के मान लेना एक बड़ी गलती है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अगर हम बगैर सोचे समझे किसी की बात को कबूल कर लें तो ऐसे फितने और फसाद पैदा हो सकते हैं जो किसी की भी दोस्ती और इज्जत को खाक में मिला सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हर बात की सच्चाई को जांचें और तहकीक के बाद ही उस पर यकीन करें, वरना